کہ میں اگر ایم این اے منتخب ہوا اور گوادر کے لوگ جو ہے وہ پانی کی بالٹیاں لے کے روڈ پہ نہیں ہوگا ایسے انشاءاللہ وہ میں گوادر کے لوگوں کو اور ماڑا پسنی جیونی سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں منتخب ہوا تو اگر جب تک ان کو سہولت نہیں ملے گی نا تو یہ جو کاشگر کارواں گوادر سے نہیں جا سکے گا۔ اگر اس بجٹ میں ہمیں پانی نہیں دیا گیا، مجبوروں کے مسئلے حل نہیں کیے، گوادر کے ایشو حل نہیں کیے، تو انشاءاللہ گوادر کے پورے گوادر کے لوگوں کو نکالوں گا اور گوادر کے تمام پروجیکٹ بند کروں گا، اس وقت تک روڈ پہ بیٹھوں گا جب تک یہ مسئلہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رشید بلوچ درون ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین مجھے کچھ میسیجز موصول ہوئے ہیں اور کچھ دوستوں نے کہا کہ گوادر کے ایم پی اور ایم این ایز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، ان پہ تھوڑی بہت جو ہے آپ بات کریں اور اس حوالے سے کوئی چھوٹا موٹا تبصرہ کر لیں، تو کیونکہ سوشل میڈیا پہ 2018 کے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ ایم این اے ہیں محمد اسلم بھوتانی صاحب جو سابقہ اسپیکر رہ چکے ہیں بلوچستان اسمبلی کے، ان کا، اور ساتھ میں ایم پی امل کلمتی کا بھی ایک ویڈیو شاٹ وہ بھی کافی وائرل ہوا، تو اس وجہ سے بہت سے دوستوں نے مجھے میسیجز کیے اور کہا کہ اس پہ کچھ بات کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور فیڈ بیک کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیں۔ 2018 کو محمد اسلم بھوتانی صاحب جو سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہیں، جن کی رپوٹیشن کافی اچھی ہے کام کرنے کے حوالے سے، جب وہ اسپیکر تھے انہوں نے اپنے علاقے میں کافی سارے کام کیے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں دریجی میں ایک بہت زبردست ماڈل ٹائپ کا کوئی پبلک پارک بنایا ہے، اس پہ ایک دو بڑے ٹی وی چینلز ہیں پروگرام بھی کیا تھا اور اس کو ماڈل کہا تھا۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ کیونکہ میں تو نہیں گیا ہوں دریجی، کہ اسلم بھوتانی باقی بھائی سردار صالح بھوتانی کی بنسبت لوگوں کے ساتھ زیادہ جڑے ہوتے ہیں، سوشل کام میں بھی وہ ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن جب سے ایم این اے بنے ہیں چونکہ لسبیلا اور گوادر کا نشست ایک ہی ہے قومی اسمبلی کے لیے، تو اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی وہ گوادر گئے ہیں۔ میرے خیال میں ایک یا دو بار گئے تھے شاید ایم این اے بننے کے بعد، اس کے بعد وہ گوادر نہیں گئے۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے ایک دو بار تقریر کی گوادر کے حوالے سے، ادروائز قومی اسمبلی کے اندر بھی محمد اسلم بھوتانی کا کوئی ایسی آواز ہم نے گوادر کے حوالے سے نہیں سنا۔ شروع میں آپ کو یاد ہوگا جو چائنیز ٹرالر کا ایشو چل رہا تھا، اس میں ایک دو بار شاید انہوں نے اسمبلی کے اندر فلور پہ کچھ بات کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے بات نہیں کی۔ لیکن بعد میں اطلاعات یہ آئیں کہ بھوتانی صاحب کی طبیعت کافی ناساز ہے، وہ ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں اور داخل ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کا علاج معالجہ بھی چل رہا ہے۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ موومنٹ کریں یا پبلک مقامات پہ جائیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا جب دریجی میں کا ایشو ہوا تھا، اس کے بعد اسلم بھوتانی نے ہب میں ایک پریس کانفرنس کی، بڑا ایگریسو پریس کانفرنس کی جام کے خلاف، اور خیر بعد میں وہ ایک ٹرائبل ایشو بھی تھا، معاملہ پھر وہ حل ہو گیا، لیکن وہ پبلک کے اندر آ گئے ہیں۔ ابھی بھی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ہب میں دریجی میں کراچی میں وہ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں اور معاملات میں ان کا کافی انفلوئنس ہے، ظاہر ہے کہ اپنے حلقے میں تو بڑے ایکٹیو رہتے ہیں طبیعت کی ناسازی کے باوجود۔ یہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے جو ہم نے آپ کو سنایا ہے، تو یہ ایک وعدہ ہے گوادر کے عوام کے ساتھ اسلم بھوتانی کا۔ کاشغر تو رہنے دیں جی، گوادر کے اندر پانی نہیں ہے، ذرا وہ مسئلہ حل کر کے دکھائیں۔ باقی بہت سارے ایشوز ہیں، فشرمینز کے ایشوز ہیں، سب سے بڑا ایشو ان کا ہے، وہ ذرا حل کر کے دیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسلم بھوتانی
PTI हुकूमत के अलाइए हैं, इत्यादि हैं, मतलब हुकूमत का समझे हिस्सा हैं वो मरकज़ में, उनका बाईदार सूबे में है, लेकिन वो ख़ुद भले MNA हैं लेकिन PTI हुकूमत का वो हिस्सा हैं। उमूमन कहते हैं कि जी इमरान खान नहीं मिलते, MNAs के साथ काम नहीं करते, शिकायतें होती हैं, लेकिन ये शिकायतें PTI को होनी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी के सरबराह हैं, वो तो पार्टी नहीं छोड़ के जा सकते, उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन असलम भूटानी की क्या मजबूरी है? वो तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़के गए हैं असम्बली में, अब उन्होंने हिमायत की है इमरान खान की, हुकूमत का हिस्सा भी हैं। अगर वो काम नहीं आ सकते, गवादर के लोगों का काम नहीं आ सकते, असलम भूटानी साहब की बात वो नहीं मानते, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर कौन सी मजबूरी है असलम भूटानी साहब की कि वो अभी भी हुकूमत से चिमटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं? तो फिर छोड़ देना चाहिए ना जी। जब आपकी बात नहीं मानी जाती, कम से कम आप अपने लोगों के पास जाके ये कहेंगे जी मैं अपोजिशन में हूँ। इस वक्त तो आपके पास ये जवाब भी नहीं है कि आप अपोजिशन में हैं, आप तो हुकूमत में हैं। होना तो ये चाहिए था जिस तरह के असलम भूटानी ने दावा किया था, वो कम से कम और कुछ ना करते, कोई तलवारबाजी ना करते अपनी हुकूमत के साथ। 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए वो धरने वाली जगह चले जाते, लोगों के साथ मिलते, उनके साथ थोड़ा बहुत गपशप करते और एक तसल्ली दे के उधर निकल जाते। ये पब्लिक को भी पता है कि असलम भूटानी के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप MNA हैं, आप वोट लेके गए हैं, तो आपको कम से कम इस घड़ी में उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रहे हैं। और मेरा ख़्याल ये है कि उसकी वजह भी ये है कि असलम भूटानी को पता है कि अपकमिंग जब भी इलेक्शन होंगे उसमें उसका कोई ज़्यादा चांस नहीं है नेशनल असम्बली के लिए, वो भी ग्वादर और लसबेला का। कड़े भी हों तो जीतने के इम्कानात उनके बहुत कम हैं, अगर कोई और सपोर्ट ताउन उनको हासिल नहीं हुआ कहीं से। यही वजह है कि असलम भूटानी नहीं आते, वरना असलम भूटानी के मुताल्लिक़ कहा जाता कि जैसे कि मैंने कहा कि वो लोगों से मिलते जुलते हैं, मसाइल सुनते हैं, कहीं उनका हाथ चलता है तो वो मसाइल हल करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ग्वादर के लोगों के लिए, और जहाँ लसबेला के अलावा ग्वादर के जितने इलाके हैं जो नेशनल असम्बली में लगते हैं, वहाँ ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं है। न सिर्फ उधर, मैं आपको ये भी बात बता दूँ, लसबेला सिर्फ दुर्रेजी या हब का नाम नहीं है, लसबेला बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। असलम भूटानी की रिपोर्टेशन इस हवाले से भी मैं कहता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं विज़िट नहीं करते, नहीं जाते, सिवाय अपने हलके के दुर्रेजी के हब के में जो उसका वोट बैंक है उनको संभालने के अलावा असलम भूटानी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। बहरहाल ये जब वीडियो आया था जो हमने आपको दिखाया, उस टाइम भी शायद मैंने आर्टिकल लिखा था, मैंने कहा था जी इस तरह बड़े वादे किए जा रहे हैं, गवादर काशगर आपके हाथ में नहीं है, वो कुछ और लोगों के हाथ में है, आप वही बात करें जो आप आगे जाके उस पर अमल कर सकें। लेकिन चूँकि सियासत है, लोगों को जज्बाती करना है, हमदर्दियाँ समेटनी हैं, तो इलेक्शन मुहिम में इस तरह की बातें की जाती हैं। जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो उसके बाद जब उस पर अमल नहीं होता तो फिर वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं, वो तारीख का हिस्सा बनते हैं। जैसे कि आजकल असलम भूटानी का वही वीडियो सर्कल हो रहा है, वायरल हो रहा है मुख्तलिफ़ हलकों में। अब आते हैं अमल कलमती की तरफ। देखें, सूबाई हुकूमत बनाने में अमल कलमती, सना बलोच, BMP का किरदार तो था, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मौजूदा वज़ीर आला की हिमायत भी की है। चले मैं मान लेता हूँ कि जो इश्यूज़ हैं उसमें अमल कलमती का अमल दखल कुछ नहीं होगा, वो कोई मसला हल नहीं कर सकते, मैं मान लेता हूँ, 100% मान लेता हूँ।
लेकिन क्या एक एमपीए को अपने हलके में अपने लोगों के साथ जाके इज़हार हमदर्दी भी नहीं करनी चाहिए? तो ये बेहिसी है मेरे ख़्याल में। अगर ये लोग चले भी जाएं वहाँ पे डरने की जगह, तो डरने वाले लोगों ने इनको पीटना थोड़ी है, इनको मारना थोड़ी है। आप जाएंगे अपनी मजबूरी बता देंगे, जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एक एमपीए हूँ, नहीं कर सकते, इख्तियारात मेरे पास नहीं है। आप कुछ लारा लप्पा दे के उधर से निकल जाते तो कम से कम मुझ जैसे लोगों को बात करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ जो धरने पे बैठे हुए लोग हैं उनको ये गिला नहीं होता। अब बरल ये उनको जाना चाहिए था उधर, अभी नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि शायद कुछ लोग समझते हैं कि ये वक्ती एक मोमेंट है, ये ख़त्म हो जाएगा और इश्यूज़ वैसे हल नहीं होने हैं। लेकिन ये है कि पब्लिक के साथ आपने बैठना है, पब्लिक के नफ्सियात और पब्लिक, जैसे कि मैंने कल कहा था कि जो पब्लिक डिमांड अगर आप उस पर जाएंगे तो पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। और चूँकि नहीं जा रहे हैं तो आने वाला वक्त बताएगा कि पब्लिक कितनी सपोर्ट करेगी इनको और मामलात क्या होंगे। बहरहाल इस वक्त धरने में बैठे हुए लोग बेआसरा हैं, न मीडिया उनको इतना ज़्यादा कवर, अभी थोड़ा बहुत दे रहा है, इतना कवर कर रहा है, ना उनके जो मुतालिबात हैं उस पे कोई संजीदा इक़दामात उठाए जा रहे हैं। थोड़े बहुत मीटिंग्स हुई हैं, शायद उन मीटिंग्स में बहुत सी सारी मजबूरियों का मसाइल की निशानदेही की है। इसलिए ज़हूर बुलैदी जब पहले दिन कहते हैं कि जी हमने तमाम इश्यूज़ को जो है हल कर दिया है, मुतालिबात मान लिए हैं, फिर चला जाता है अगले दिन, मतलब ये मजाक है अपने साथ, ज़हूर बुलैदी का अपने साथ मजाक है कि एक दिन पहले कहते हैं कि जी हमने तमाम इश्यूज़ को जो है वो नोटिस कर लिया है और मुतालिबात मान लिए हैं और अमल दरामद करना शुरू कर दिया है, और अगले दिन चले जाता है कहते हैं जी 3 महीने का हमें वक़्त दें ताकि हम मसाइल को हल करें। तो एक दिन पहले तो आप कुछ और कह रहे थे, एक दिन के बाद आप कुछ और कह रहे हैं। बहरहाल ये हमारे ज़िम्मेदारान और हुकूमत के वज़रा का हाल है, तो क्या कहा जा सकता है। यही है कि पब्लिक अभी उठी हुई है, अभी लारा लप्पों से दिलासों से ये उठने वाले नहीं है। तो जब तक थोड़ा बहुत अमली इक़दामात करके ना दिखाया जाए। इन्हीं बातों के साथ अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।